Hello students and welcome to the Virtual Learning Network. This is session 31 for Modern India 1857 to 1964, and here we will discuss the growth of Indian capitalism, the capitalist class and the freedom struggle. The topics to be covered are Introduction, Growth of Indian economy and the Indian capitalist class, the emergence of a class organization, nature of anti-imperialism, Congress and the capitalist, and capitalist view of the Congress. Now first is introduction. The Indian national movement was in its initial stages during the second half of the 19th century, mainly confined to the educated middle classes. इंडियन नेशनल कांग्रेस इनिशियल स्टेजेस पे ही थी 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में और ज़्यादातर एजुकेटेड मिडिल क्लास में ही कन्फाइंड थी. However, in course of time, it began to expand its social base and gradually other classes and sections of society began to join it. लेकिन धीरे धीरे जैसे वो एक्सपैंड होने लग गई तो सोशल बेस उसने अपना एक्सपैंड किया और दूसरी क्लासेस एजुकेटेड मिडिल क्लास को छोड़ के जो बाकी सेक्शंस थे सोसाइटी के उन्होंने भी इंडियन नेशनल मूवमेंट में ज्वाइन करना शुरू कर दिया था. The nature of the role played by various classes and social groups and the timing of their joining the national struggle varied. लेकिन जो रोल दूसरी क्लासेस प्ले कर रही थी या सोशल ग्रुप्स का जो रोल था उसमें वो अलग अलग हिसाब से था और उनकी टाइमिंग भी अलग थी ज्वाइन करने की. The modern capitalist class began to emerge in India in the second half of the 19th century. जो मॉडर्न कैपिटलिस्ट क्लास थी वो 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में इमर्ज होनी शुरू हुई. टिल अबाउट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट देयर वर फ्यू इंडियन कैपिटलिस्ट एंड द साइज ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट वाज आल्सो नॉट सब्सटैंशियल. वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम तक इंडियन कैपिटलिस्ट बहुत कम थे और उनकी इन्वेस्टमेंट्स भी काफ़ी कम थी. Moreover, they were as yet largely dependent on the colonial government support. और ज़्यादातर जो इंडियन कैपिटलिस्ट थे उस टाइम पे उनका ज़्यादातर जो डिपेंडेंस थी वो colonial government पे थी. At this stage of development, it was hardly possible for the Indian capitalist as a class to take an open confrontationist position with regard to the colonial state. The capitalists stayed away from the Swadeshi movement of 1905 to 1908. At the time of the non-cooperation movement in 1920 to 22, while many traders participated in the movement, several eminent capitalists like Purushottam Das Thakur Das actually opposed the movement. Subsequently, however, the capitalist position changed. There were many Indian capitalists who extended their support to the freedom struggle. So शुरू में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हुई थी उसके बाद भी कैपिटलिस्ट सपोर्ट बहुत कम था क्योंकि वो कॉलोनियल गवर्नमेंट पे ज़्यादा रिलाय करते थे. लेकिन जैसे जैसे स्वदेशी मूवमेंट आई उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उस टाइम पे ट्रेडर्स ने काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेशन दिखाया था इसमें और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास ने इसको बहुत ज़्यादा अपोज किया था. और उसके बाद फिर कैपिटलिस्ट पोजीशन चेंज हुई और इंडियन कैपिटलिस्ट सोसाइटी ने भी फ्रीडम स्ट्रगल में अपना सपोर्ट दिखाया. Then next is growth of Indian economy and Indian capitalist class. Soon after the beginning of 20th century, the Indian economy entered a process of rapid import substitution. During the two world wars, as also in the course of world depression of the 1930s, the grip of imperialism over the Indian economy became comparatively weaker and the process of growth of Indian industry, largely the indigenous manufacturers substituting foreign imports, gained a large impetus. So, 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में भी इंडियन इकोनॉमी एक रैपिड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में के प्रोसेस में आ गई थी क्योंकि दो वर्ल्ड वॉर एंड होने के बाद इंपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और वर्ल्ड डिप्रेशन भी आ गया था 1930 में. फिर इंपीरियलिज्म पे ग्रिप पाने के लिए इंडियन इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा वीकर हो गई थी और जो इंडियन इंडस्ट्री का ग्रोथ प्रोसेस था वो भी स्लो हो गया था. जो इंडिजिनस मैन्युफैक्चरर्स थे
उनको बहुत ज़्यादा गेन हो रहा था फॉरेन इंपोर्ट्स सब्स्टिट्यूट करने पे, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली द ग्रोथ इन इंडिजिनस इंडस्ट्री दैट अकर्ड इन दिस पीरियड वॉज डिराइव्ड लार्जली फ्रॉम द रिसोर्सेज ऑफ इंडिपेंडेंट इंडियन कैपिटल. देन increase in indigenous industrial growth. Since World War I was reflected in a definite reversal of the typical colonial pattern of foreign trade under which the colonial imported manufactured goods and exported agricultural raw materials. फिर इंडिजिनस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की इंक्रीज हुई थी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद, और ये रिफ्लेक्ट हुई कॉलोनियल पैटर्न के चेंजेस में, जो उनका फॉरेन ट्रेड में चेंज आया था, पॉलिसीज चेंज हुई थी. एंड बिटवीन 1914 to 45 the proportion of manufactured goods in India's total export declined considerably while the proportion in total export increased. सो 1914 और 45 के बीच में भी जो इंडियन इंपोर्ट था वो बहुत कम हो गया था और एक्सपोर्ट उसकी बराबरी में इंक्रीज हुआ था. द होल्ड ऑफ फॉरेन कैपिटल which in case was not as large in India as in some other colonial countries and was not very significant in domestic industry began to decline during this period. जो फॉरेन कैपिटल का होल्ड था इंडिया में वो भी इतना ज़्यादा नहीं, इतना सिग्निफिकेंट नहीं था जितना बाकी कॉलोनियल कंट्रीज में था, और इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी नहीं था डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को अगर देखा जाए तो. फॉरेन कैपिटल इनफ्लो इनटू द इंडियन इकोनॉमी फेल ऑफ आफ्टर अ स्पर्ट इन द अर्ली 1920s. फॉरेन कैपिटल इनफ्लो जो हो रहा था इंडियन इकोनॉमी में उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन आ गया था 1920s के टाइम पे. Then, during the post-World War I period, in the course of the processes, the Indian capitalist class was able to grow rapidly. तो पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही थी. इट वॉज एबल टू डू सो थ्रू constant economic and political struggle and by taking full advantages of the crisis faced by British imperialism, especially during the two world wars and the Great Depression. सो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रगल जो कांस्टेंट लेवल पे चल रहा था उसकी वजह से भी उन्हें काफ़ी फायदा हुआ, और वो क्राइसिस जो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म फेस कर रहा था उसकी भी पूरी एडवांटेज ले रहे थे. नेक्स्ट इज द इमर्जेंस ऑफ अ क्लास ऑर्गेनाइजेशन. नाउ it was in the process of figuring out its attitude towards imperialism and the national movement that the capitalist class in India emerged as a political entity. So, जो इंपीरियलिज्म के लिए लोगों का एटीट्यूड था उसको फिगर आउट करने के बाद और नेशनल मूवमेंट को देखते हुए कैपिटलिस्ट क्लास इमर्ज हुई थी पॉलिटिकल एंटिटी की तरह. सिंस द अर्ली 1920s, कैपिटलिस्ट लाइक G.D. बिरला एंड पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास were making efforts to establish a national level organization of Indian commercial, financial and industrial institutes in trust. So, कुछ कैपिटलिस्ट थे जैसे कि G.D. बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे और एफर्ट्स कर रहे थे कि वो एक नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन बना सके जो इंडिया को कमर्शियली, फाइनेंशियली और इंडस्ट्रियली बेनिफिट दे सके. द इनिशियल आइडिया वॉज टू एस्टैब्लिश an Indian business organization which could effectively lobby with the colonial government, a role which relatively more organized non-Indian business interests were already performing. इसका जो मेन आइडिया था वो था इंडियन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश करना जो इफेक्टिवली कॉलोनियल गवर्नमेंट से ऊपर जा सके और एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सके जो नॉन इंडियन बिजनेस इंडस्ट्रीज और इंटरेस्ट परफॉर्म कर रहे थे. दिस एफर्ट led to the formation of the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry in 1927. The FICCI FICCI soon acquired a large membership which increasingly became representative of Indian business interests from all over the country. Within a short period of its formation, it was recognized by the British authorities as well as the general Indian public as a body which represented the dominant opinion within the Indian capitalist class. Next is the emergence of a class organization. Now first here is role in the economic sphere.
The capitalist leaders clearly stated that the goal of the FICCI was to become the national guardians of trade, commerce and industry. It was to perform in the economic sphere the function that is normally expected of a nationalist organization. In pursuance of this goal, the Indian capitalists developed a comprehensive economic critique of imperialism in all its manifestations. So जो कैपिटलिस्ट लीडर्स थे उन्होंने क्लियरली यही स्टेट किया कि फिकी का जो मेन गोल है वो है एक नेशनल गार्जियन की तरह काम करना जो इंडिया का ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्री को आगे लेके जा सकता है, और वो एक इकोनॉमिक स्फेयर में परफॉर्म करना चाहते थे जो कि एक्चुअल में नॉर्मली हम नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं. देन इज द रोल इन द पॉलिटिकल स्फेयर. The role of the FICCI was, however, not to be limited to making an economic critique of imperialism and fighting for the economic demands of the capitalist class in particular and of a nation as a whole in general. So, FICCI का मेन रोल ये नहीं था कि वो इकोनॉमिक क्रिटिक में ही अपनी मेन एम को लिमिट कर सके, लेकिन साथ में वो इकोनॉमिक डिमांड्स को भी फाइट करना चाहते थे कि कैपिटलिस्ट क्लास की इकोनॉमिक डिमांड्स क्या है और नेशन की डिमांड्स को वो कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं. द लीडर्स ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास क्लियरली सॉ द नेसेसिटी ऑफ इफेक्टिव इंटरवेंशन इन पॉलिटिक्स. पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की, declared at its second annual session in 1928, we can no more separate our politics from our economics. Involvement in politics for the capitalist meant allying with the Indian national movement. So, जो लीडर्स थे कैपिटलिस्ट क्लास के, उन्होंने क्लियरली ये देखा कि पॉलिटिक्स में वो कैसे इफेक्टिवली इंटरवेंशन कर सकते हैं ताकि उसको और इम्प्रूव किया जा सके. पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास जो फिक्की के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने सेकेंड एनुअल सेशन में ये डिक्लेयर किया कि वो पॉलिटिक्स को इकोनॉमिक्स से अब ज्यादा देर तक सेपरेट नहीं कर सकते. पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट कैपिटलिस्ट क्लास की बहुत जरूरी है ताकि वो इंडियन नेशनल मूवमेंट के साथ अलाइन कर सके. Next is the nature of anti-imperialism, the constitutional path. The capitalists, while determining their attitude towards the British, were always in favor of not completely abandoning the constitutional path and the negotiating table. Capitalists जो पहले से ही उनका एटीट्यूड ब्रिटिश की तरफ डिटर्मिनेशन वाला था, वो कभी भी इस फेवर में नहीं थे कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल पाथ को बिल्कुल ही अबंडन कर दें या नेगोशिएटिंग टेबल से हट जाएं. दे सपोर्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म्स ऑफ स्ट्रगल एंड वर नॉट इन फेवर ऑफ एजिटेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस. उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म्स को सपोर्ट किया लेकिन वो कभी भी एजिटेशन और सिविल डिसोबीडियंस के फेवर में नहीं थे. There were several reasons for the capitalist class adopting this attitude. First is the fear of a mass movement. First, the capitalists feared that mass civil disobedience, especially if it was prolonged, could lead to the radicalization of the masses, and instead of just putting pressure against imperialism, it could begin to threaten capitalism itself. So, सबसे पहले उनको मास मूवमेंट से डर लगता था. उन्हें लगता था कि अगर मास मूवमेंट ज़्यादा टाइम तक चली तो वो सिर्फ इंपीरियलिज्म को हटाएगी, सिर्फ इंपीरियलिज्म को नहीं हटा के बल्कि कैपिटलिज्म के भी अगेंस्ट हो जाएंगे और जो उनके इन्वेस्टमेंट को थ्रेटन कर सकता है. नेक्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल फॉरम्स. द कैपिटलिज्म or capitalists considered that a total or prolonged boycott of all constitutional avenues such as councils and legislatures or the negotiations like the Round Table Conference was a suicidal policy. They felt that if the nationalist forces completely abandoned these forums, then with the help of loyalist elements the government could easily get such policies or measures passed in these forums which would seriously affect Indian economic development. So कैपिटलिस्ट को ये भी लगता था कि अगर बॉयकॉट को ज्यादा देर तक चलाया गया, अगर हम काउंसिल्स और लेजिस्लेचर्स को बॉयकॉट करेंगे या फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट करेंगे तो ये एक तरह से सुसाइडल पॉलिसी की तरह काम करेगा, क्योंकि इसकी वजह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो उनको सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करेगी कैपिटलिस्ट को, और जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे बहुत गहरा असर पड़ सकता है. Then next is the attitude to mass movements.
However, at times they felt a mass movement necessary in order to extract crucial concessions for their class or the country. कई बार उनको ये भी लगता था कि मास मूवमेंट इम्पॉर्टेंट भी है ताकि वो कंसेशंस ले सके अपनी क्लास के लिए. Here we can cite the comment made by G.D. Birla in January 1931 about the ongoing civil disobedience movement. He said, "There could be no doubt that what we are being offered at present is entirely due to Gandhiji. If we are to achieve what we desire, the present movement should not be allowed to slacken." So, एक बार ऐसे ही G.D. बिरला ने भी स्टेट किया था जनवरी 1931 में, जब सिविल डिसोबीडियंस चल रही थी, कि जो भी अभी तक हमने पाया है वो सिर्फ गांधी जी की वजह से ही है, और अगर हमें वो अचीव करना है जो हम चाहते हैं तो प्रेजेंट मूवमेंट को हमें डिग्रेड नहीं होने देना होगा. देन डेंजर्स ऑफ अ प्रोलॉन्ग्ड मास मूवमेंट. Yet they would not like the mass movement to continue for long. फिर भी अगर वो मास मूवमेंट को सपोर्ट भी करते थे तब भी वो ये चाहते थे कि मास मूवमेंट ज़्यादा टाइम तक ना चले. They would attempt for a compromise that could lead to the withdrawal of the movement. Often they offered their services as intermediaries between the government and the Congress in the negotiation for peace. वो हमेशा ये अटेम्प्ट करते थे कि वो कैसे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं ताकि मूवमेंट को विड्रॉ कर सके, और इसीलिए वो सर्विसेज भी ऑफर करते थे इंटरमीडियरीज की तरह गवर्नमेंट और कांग्रेस के बीच में ताकि शांति बनाए रखें. देन नेक्स्ट इज कांग्रेस एंड द कैपिटलिस्ट. द कांग्रेस वॉज डीपली influenced by the capitalists who used it to serve their own class interest. कांग्रेस हमेशा कैपिटलिस्ट से इन्फ्लुएंस हुई थी जो अपने फायदे के लिए उसको यूज करते थे. दिस व्यू पॉइंट इज सेंटर्ड ऑन द थीसिस दैट द कैपिटलिस्ट बाय यूजिंग द फंड्स एट देयर डिस्पोजल प्रेशराइज द कांग्रेस इनटू फाइटिंग फॉर देयर ओन डिमांड्स लाइक अ लो रुपी स्टर्लिंग रेशियो, tariff protection to Indian industries and reservation to coastal traffic to Indian shipping. So ये व्यू पॉइंट हम ऐसे भी सेटिस्फाई कर सकते हैं कि कांग्रेस को हमेशा ही प्रेशराइज किया जा रहा था ताकि कैपिटलिस्ट उसकी डिमांड्स को पूरा कर सके, जैसे कि लो रुपी स्टर्लिंग रेशियो उनकी एक डिमांड थी, फिर टैरिफ प्रोटेक्ट करना इंडियन इंडस्ट्रीज का, और साथ में कोस्टल ट्रैफिक के रिजर्वेशंस इंडियन शिपिंग के लिए. और ये सारी ही डिमांड्स ऐसी हैं जो कैपिटलिस्ट को फायदा पहुंचा सकती हैं. The second point of view is based on the assumption that the Congress was not at all influenced by the capitalists, rather it dictated its own terms. So अगर हम second assumption देखें कांग्रेस और कैपिटलिस्ट को देखें तो second व्यू पॉइंट है कि कांग्रेस कभी भी कैपिटलिस्ट की वजह से इन्फ्लुएंस नहीं हुई है, rather उन्होंने अपनी ही टर्म्स कैपिटलिस्ट पे इम्पोज करी हैं like a dictator. Now according to this viewpoint, a program of economic nationalism with demands for protection, fiscal and monetary autonomy vis-a-vis imperialism did not benefit the capitalist class alone. These were national demands for independent economic development. Anyone who was anti-imperialist, whether a capitalist or not, had to fight for these demands. So कोई भी economic nationalism का प्रोग्राम जो भी उसकी डिमांड्स है जैसे कि प्रोटेक्शन, फिस्कल या मॉनेटरी ऑटोनॉमी को लेके वो सिर्फ कैपिटल क्लास को ही बेनिफिट नहीं देती है. ये नेशनल डिमांड्स थी इंडिपेंडेंस के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, और कोई भी जो एंटी इंपीरियलिस्ट भी है चाहे वो कैपिटलिस्ट हो या ना हो वो इन डिमांड्स के लिए लड़ता था. सो हम सेकेंड अजम्पशन को जो सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू है उसको भी ज्यादा वेटेज दे सकते हैं. देन सेकेंडली द कांग्रेस डिपेंडेंस ऑन द फंड्स फ्रॉम businessmen was not the determining factor as far as the policy decisions were concerned. जो बिजनेसमैन की तरफ से कांग्रेस के लिए फंड्स आ रहे थे सिर्फ वही एक डिटरमाइनिंग फैक्टर नहीं है जितने भी उनकी पॉलिसी डिसीजंस अगर हम उसके बारे में सोचे तो. नेक्स्ट इज द कैपिटलिस्ट व्यू ऑफ द कांग्रेस. नाउ अप्रोचिंग द कांग्रेस. Interestingly, the capitalists themselves showed remarkable maturity in never seeing the Congress as their class party or even as a party amenable only to their influence. They fully recognized that the Congress was a multi-class popular movement with room in it, as J.K. Mehta of the Indian Merchants Chamber put it,
for all shades of political opinion and economic views. Which shade or which class perspective would exercise greater weight within the Congress remained an open question and was partially linked to the political maturity and far-sightedness of each class. So capitalist ने खुद ने ही एक रिमार्केबल मेच्योरिटी शो करी जो पहले कभी किसी ने शो नहीं करी, जो जैसे कि कांग्रेस ने भी, उन्होंने हमेशा कांग्रेस को फुल्ली रिकॉग्नाइज किया एक मल्टी क्लास पॉपुलर मूवमेंट की तरह. लेकिन कौन से शेड या कौन सी क्लास पर्सपेक्टिव ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं या कांग्रेस के अंदर किसको ज्यादा वेटेज दी जाती है, ये हमेशा से एक ओपन क्वेश्चन की तरह रहा है और इसको हम पॉलिटिकल मैच्योरिटी और फार साइटेडनेस की तरह से भी ट्रीट कर सकते हैं. देन कैपिटलिस्ट स्ट्रेटजी टू कंटेन द लेफ्ट. It is with this understanding that the capitalists molded their politics to try to ensure that the national movement did not get too radicalized. That is, it did not come under the dominating influence of the socialist or communist. अब इस अंडरस्टैंडिंग से हम ये देख सकते हैं कि जो कैपिटलिस्ट हैं उन्होंने पॉलिटिक्स को मोल्ड किया या फिर नेशनल मूवमेंट को ये भी ज़्यादा रेडिकलाइज ना हो ये भी देखने की कोशिश करी. मतलब वो कभी भी डोमिनेटिंग इन्फ्लुएंस के अंडर नहीं आए सोशलिस्ट के और कम्युनिस्ट के. However, as pointed out earlier, the capitalists did not respond to the growing threat of the left in Indian by allying themselves with imperialism. लेकिन अगर हम ये भी देखें तो ये भी बात सही है कि वो कभी भी लेफ्टिस्ट के थ्रेट के अंडर नहीं आए क्योंकि वो इंपीरियलिज्म के साथ थोड़ा फ्रेंडली रिलेशन रखते थे. फॉर एग्जाम्पल, इन 1928 दे रिफ्यूज टू सपोर्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन पासिंग द पब्लिक सेफ्टी बिल विच वॉज इंटेंडेड टू कंटेन द कम्युनिस्ट ऑन द ग्राउंड दैट सच अ बिल वुड रिजल्ट इन एन अटैक ऑन द नेशनल मूवमेंट. द फैक्ट that the capitalists did not abandon the side of nationalism even when threatened by the left tendency within the national movement went a long way in maintaining the influence of the capitalist perspective within the movement. जैसे 1928 में उन्होंने कॉलोनियल गवर्नमेंट का एक पब्लिक सेफ्टी बिल को पास करने से इनकार कर दिया था और उसको सपोर्ट देना रिफ्यूज कर दिया था, जबकि उसके अंदर कम्युनिस्ट का भी इंटेंशन शामिल था. लेकिन ये भी फैक्ट क्लियर है कि कैपिटलिस्ट कभी भी नेशनलिज्म की साइड को छोड़ के नहीं जाते थे, ना ही उसके लिए सपोर्ट कम करते थे, जबकि लेफ्ट टेंडेंसी जो थी वो भी उनसे भी थ्रेटन होते थे नेशनल मूवमेंट में. लेकिन फिर भी जो नेशनल मूवमेंट का इन्फ्लुएंस था वो उन पे बरकरार था. Now here are some questions for you. First is, was the growth of the capitalist class a byproduct of colonialism? And second question is, what role did the FICCI play in the economic sphere? That's all for this session. Thank you and have a nice day.